सर स्टार्ट करें। Good morning, sir, and all my dear friends. Today, I, Soumya Sahu, is going to present a PowerPoint presentation on paper first, philosophical perspective of education, and my topic is idealism. First, I tell the introduction of the idealism. Idealism is a very oldest ideology of Western philosophy, which was developed by Socrates and his disciple or student Plato, and many more philosophers after them developed this philosophy, like Descartes, Berkeley, Kant, Fichte, Hegel. Basically, this ideology considers universe to be created by God and believes that spiritual world is superior than the material world. Spiritual world is here means that कि वास्तु जगत spiritual जगत मतलब कि God, they believe in God and they do not believe in material world. They consider that God is the ultimate truth and soul as a part, and they believe that self realization is the main aim of human. Now, the word idealism is derived from the two words which which are idea and ism. The word idea means true and testify knowledge, मतलब विचार. Ism means dispute वाद. So then it is called as idealism. Idealism, Plato is known as the father of idealism, and they gave importance to thinking, ideas, and logic. Now, the chief exponents of idealism are first, the Western idealism are Plato, Socrates, Powell, Descartes, and our Indian philosopher they are Vedic rishis Swami Dayanand Saraswati, Rabindranath Tagore, and Arvindo Ghosh. Now, these are some definitions given by different authors. First, Adam. According to Adam, idealism is one form or other permeates the entire history of philosophy. एडम के अनुसार आदर्श व एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास का व्यापक रूप है. एडम ने बोला कि जो आइडियलिज्म है वो एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड के बीच का इतिहास है. And now, according to J.S. Rose, idealistic philosophy takes many varied forms, but the postulates underlining all is that mind or spirit is the essential world stuff that is true. Now, रूस ने बोला कि आदर्शवादी दर्शन के बहुत और विविध रूप हैं, परंतु सभी का आधारभूत तत्व यही है कि संसार की उत्पत्ति का कारण मन और आत्मा है. वास्तविक रूप मानसिक चरित्र का एक रूप है. अकॉर्डिंग टू हॉर्न. अब हॉर्न ने क्या बोला? हॉर्न ने बोला कि आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझाने की अनुभूति का विवरण है. नाउ, what are the branches of idealism? Fundamentals of idealism, they are metaphysics, epistemology, and axiology. तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, and मूल मीमांसा. Now we talk about first metaphysics of idealism. तत्व मीमांसा. First, the metaphysics of idealism is based on the idealistic ideology idea. According to this, thought is truth. According to metaphysics, that कि they main focus on the idea मतलब विचार. They think that विचार जो है वो हमेशा truth सच होते हैं, और they think that physical world मतलब वास्तु जगत जो unreal है, और they give importance to soul and spiritual contemplation. इन्होंने जो सोल है और जो हमारा ईश्वर है उनको बहुत ही ज्यादा महत्व दिया. एंड अकॉर्डिंग टू प्लेटो, व्हाट प्लेटो थिंक दैट वर्ल्ड इज नॉट इन मेटेरियलिटी. दे थिंक दैट जो संसार है वो
वास्तु जगत में नहीं है, वो थॉट्स में मतलब विचार में है। ही कंसीडर्ड माइंड एंड लॉजिक एज द मेन वन। इन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दिया? इन्होंने माइंड, बुद्धि और लॉजिक को इन्होंने ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। अब नाउ द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग क्लासेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेचर। मेटाफिजिक्स को डिफरेंट फिलोसफर्स ने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। फर्स्ट, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। जो बार्कले थे उन्होंने आइडियलिज्म दिया सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, विच मीन्स वास्तु जगत और कुछ नहीं, केवल मन की प्रत्यक्षीकरण है। नाउ ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म विच was given by Plato, which means विकास माइक्रोफोन ऑफ करें। कंटिन्यू सौम्या। प्लेटो ने बोला कि वास्तु, उन्होंने ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म दिया। उन्होंने बोला कि जो हमारे विचार हैं वो सत्य हैं और जो प्रकृति और भौतिक जगत सत्य नहीं है। नाउ हीगल ने हमारा थर्ड आइडियलिज्म का दिया अकॉर्डिंग टू नेचर, दैट वाज एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, विच मीन्स कि आत्मा के चरम रूप परमात्मा है और वही वस्तु जगत का निर्माण करने वाला है। इन्होंने बोला जो आत्मा है उसका चरम रूप जो है वो परमात्मा है और वास्तु जगत को परमात्मा परमात्मा ने ही बनाया है। नाउ फिनोमिनल आइडियलिज्म जो कि कैंट ने दिया, उनके अनुसार जगत के पदार्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से ना होकर परोक्ष रूप में होता है। कांट ने बुद्धि को वास्तु के ज्ञान का आधार माना, इसलिए उनका विचारधारा बुद्धिवादी आदर्शवाद था। Now, modern idealism. Modern idealism is given by many philosophers. They are Samuel Taylor, केजरिल, जेम्स स्ट्रेलिंग, एंड इनके अनुसार दे आर गिवन जर्मनी के, जो कि अभी मॉडर्न में चल रहा है। नाउ इपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म। अब इपिस्टेमोलॉजी क्या है? आदर्शवाद का ज्ञान मीमांसा। अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट द रियल नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ सेल्फ और स्पिरिट। इन्होंने ये बताया जो हमारा रियल नॉलेज है वो हमें अपने आप को जानना, अपने आप को जानना ही हमारा वो रियल मोटिव होना चाहिए। आइडियलिज्म बिलीव्स इन द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मैन, बाय वर्च्यू ऑफ विच मैन इज एसेंशियली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर लोअर क्रिएचर ऑफ द यूनिवर्स। जो हमारा आइडियल आदर्शवाद है वो आदर्शवाद है जो स्पिरिचुअल नेचर मतलब ईश्वर को मानने वाला है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आइडियलिज्म फिलोसफर में डिफरेंट डिफरेंट ज्ञान मीमांसा के बारे में बताया। फर्स्ट सुक्रोट्स ने बोला कि जो रियल नॉलेज है वो हमारा कॉन्सेप्ट के द्वारा हम अपना अर्जित कर सकते हैं, मतलब उसे एक्वायर्ड कर सकते हैं। और जो प्लेटो थे उन्होंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था सेंस नॉलेज, दूसरा था अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, तीसरा था कंटेम्पलेटिव लैंग्वेज। इधर प्लेटो ने ये बोला कि पहला जो था वो इंद्रजन इंद्रियजन ज्ञान, और दूसरा था सामान्य ज्ञान, और तीसरा था चिंतन जन ज्ञान। मतलब पहले में हम लोग इंद्रिय को द्वारा ज्ञान अर्जित करना, और तीसरा दूसरा हम लोग को उसको समझ कर, और तीसरा था हम लोग को उसको उस पर सोच विचार करके जो नॉलेज अर्जित करेंगे। अब हम लोग का ये था कि जो बार्कले ने बोला कि सोल टू बी द बेसिस फॉर अटेनमेंट ऑफ ट्रू नॉलेज। बार्कले के अनुसार उन्होंने बोला जो हमारा सोल है वो मेन बेसिस होना चाहिए नॉलेज को, ज्ञान को अर्जित करने के लिए। अब देखिए केंट ने ये बोला जो हमारा रीजनिंग है, उन्होंने तर्क को महत्व दिया। उन्होंने बोला कि जो रीजनिंग है उसको बेसिस होना चाहिए नॉलेज का, ज्ञान को अर्जित करने का बेसिस होना चाहिए मतलब तर्क। हम लोग को तर्क मतलब एक दूसरे से क्वेश्चंस करना चाहिए। और हम लोग का आया थर्ड है एक्सियोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद की मूल मीमांसा। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ लाइफ आर कंसीडर सत्यम शिवम एंड सुंदरम। इसमें जो हम लोग का अल्टीमेट वैल्यू, जो हम लोग का लाइफ का मेन गोल होना चाहिए, उसको हम लोग को होना चाहिए सत्यम शिवम एंड सुंदरम टू अचीव। और हम लोग को ये वैल्यूज कैसे अचीव होंगे? थ्रू, अगर हम लोग मोरल लाइफ जिएंगे, दूसरों की
सहायता करना और इन नैतिक जीवन को जीना, ये और इन सब जो मोरल लाइफ के जो मेन लीड वर्च्यूज हैं वो था रिस्ट्रेंट, पेशेंस, नॉलेज एंड जस्टिस। संयम रखना, पेशेंस, संयम रखना, धैर्य रखना, ज्ञान और न्याय, ये आवश्यक होना चाहिए हमारे मूल मीमांसा में। इफ अ मैन एक्वायर दिस वर्च्यू देन बाय अटेनिंग सत्यम शिवम सुंदरम ही अटेन्स द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अगर कोई मनुष्य अगर ये सारी चीजें अटेन कर लेता है तो वो सत्यम शिवम सुंदरम को अटेन करने के बाद वो अल्टीमेट जो उसका ऑब्जेक्टिव है आइडियलिज्म का, सेल्फ रियलाइजेशन, वो अटेन कर लेगा। नाउ what are the principles of idealism? प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म आर, फर्स्ट है हमारा टू फॉर्म्स ऑफ द होल वर्ल्ड। जो आइडियलिज्म है उन्होंने इसमें वर्ड को दो भाग में डिवाइडेड किया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड सेकेंड मटेरियल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड मतलब वास्तु जगत और स्पिरिचुअल मतलब गॉड। And the second was ideas are more important than object, they give more importance to ideas। इन्होंने विचार्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया एज कंसिडर टू ऑब्जेक्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन ओवर नेचर, दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मैन इंस्टेंट ऑफ नेचर। इन्होंने मैन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी, ना कि नेचर को। और फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज, they believe that they believe that according to them the ultimate principle, the prime aim of life is to achieve spiritual values। अकॉर्डिंग टू देम हम लोगों को स्पिरिचुअल वैल्यू को हम लोग का प्राइम वो होना चाहिए। दे बिलीव दैट वी हैव टू अटेन सत्यम शिवम एंड सुंदरम। और इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था नोइंग, फीलिंग एंड विलिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट। दे गिव मोर, जो प्रिंसिपल था उनका फिफ्थ, उनका था इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मनुष्य का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मनुष्य कैसे, आइडियलिस्ट गिव मच इम्पोर्टेंस टू सेल्फ ऑफ द इंडिविजुअल। उन्होंने बोला कि इंसान को अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। और दे बिलीव दैट सेल्फ रियलाइजेशन इज द ट्रू सेंस। इन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। और दे बिलीव दैट ह्यूमंस को कास्ट, क्रीड, सेक्स और रेस के बेसिस पे कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। एंड नाउ फुल सपोर्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ डाइवर्सिटी। इसका मीन्स यही है कि जो कास्ट, क्रीड के रेस के बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ना हो। नाउ idealism and education of what idealism have a very important role in the field of education। idealism का बहुत ही बड़ा importance है हमारी field of education में। according to them there are two forms of education, first was physical and second was spiritual। the physical aim of education is to protect the body। जो हम लोग का physical aim था according to that अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करना ही हमारा एम होना चाहिए। एंड नाउ सेकेंड इज स्पिरिचुअल। अकॉर्डिंग टू देम स्पिरिचुअल पूजा अकॉर्डिंग टू कैंडपाल, देम दे हैव टू अटेन माइक्रोफोन बंद करिए। सत्यम पूजा शिवम एंड कैंडपाल, सुंदरम। Spiritual qualities separate man from animal। Education is पूजा, not an end सौम्या, but only a means। Yes sir। थोड़ा सा रुकिए बेटा। पूजा, पूजा कैंडपाल, माइक्रोफोन ऑफ करिए। पूजा कैंडपाल, आवाज सुन पा रहे हैं? सौम्या, आवाज आ रही है? Yes sir, आ रही। कंटिन्यू करिए बेटा। Now सभी what are the विद्यार्थी अपना aims? माइक्रोफोन बंद रखेंगे, है ना? हाँ, कंटिन्यू। Now, idealism and aim of education. What are the aim of education according to idealism? First was exhalation of personality or self-realization. Second, spiritual development. Third, realization of eternal values and ideals.
fourth realization, fifth enrichment of cultural heritage, and last intellectual development of child. Now first exhalation of personality or self realization. According to them, आदर्शवाद में मानव व्यक्तित्व को सर्वोच्च तथा सर्वोत्कृष्ट ईश्वरी कृति माना है। इसमें मनुष्य को बहुत ही बड़ा सर्वोच्च स्थान दिया गया, उन्हें मनुष्य को ईश्वर के समान माना गया। इसलिए जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्तित्व का उच्चतम विकास अथवा सहानुभूति है। इसलिए इन्होंने बोला है, आइडियलिज्म के इन्होंने बोला है कि मनुष्य का उच्चतम विकास ही हमें ईश्वर की कृति प्रदान कर सकता है। इसमें बहुत सारे जो आइडियलिस्ट थे उन्होंने अपने विचार दिए। फर्स्ट रस और रेक्स थे, उन्होंने बोला द एम ऑफ एजुकेशन स्पेशली एसोसिएटेड विद आइडियलिज्म is the exhalation of personality or realization, the making actual or real the highest potentialities of the self. नाउ आदर्शवादियों के अनुसार आत्मभूति की चरम व्यवस्था में व्यक्ति सत्यम मतलब ट्रुथ, शिवम मतलब गॉडेस तथा सुंदरम ब्यूटी की अनुभूति कर सकता है। नाउ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आदर्शवाद आध्यात्मिक पूर्णता अथवा अध्यान आत्माभूति को ही व्यक्ति का पूर्ण विकास मानता था। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन को ही पूर्ण विकास मानता था। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म उनका मेन उद्देश्य था बालकों का आध्यात्मिक विकास करना और इसके अनुकूल ही शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। नाउ रियलाइजेशन ऑफ इटर्नल वैल्यूज एंड आइडियल्स। अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट के अनुसार सत्यम शिवम एंड सुंदरम मानव जाति के आध्यात्मिक ईश्वर आदर्श हैं एवं जीवन की सशक्त मूल है अथवा शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो मनुष्यों को इन मूल्यों की प्राप्ति में सहायक हो। इन आदर्शों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर मस्तिष्क सत्य को जानता है और असत से दूर रहता है, सुंदरता का अनुभव करता है और असुंदरता को से दूर रहता है, अच्छाई का संकल्प करता है और बुराई को दूर रखता है। और इसी में रेक्स ने फिर से एक स्टेटमेंट दिया, वी मे एक्सेप्ट दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज द enhancement or enrichment of personality, the differentiating features of which is the embodiment of the universal value. Now enrichment of cultural heritage. अब according to idealist, what is the mean by enrichment of cultural heritage? आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि है। सांस्कृतिक संपदा की संरचना और विकास में सहयोग देकर ही व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की अपनी सांस्कृतिक हस्तांतरित कर सकता है। इस उद्देश्य के बारे में फिर से रक्स ने एक स्टेटमेंट दिया, एजुकेशन मस्ट एनेबल मैनकाइंड थ्रू इट्स कल्चर टू एंटर मोर एंड मोर फुल्ली इनटू द स्पिरिचुअल रियलम एंड आल्सो टू enlarge the boundaries of the spiritual realism. अब नाउ द लास्ट वन इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब इसमें प्लेटो ने बोला कि मनुष्य की बुद्धि एवं विवेक उसके सभी आदर्शों तथा आध्यात्मिक चिंताओं का आधार होता है। एडम्स ने इसी में बोला कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की बुद्धि एवं विवेक को विकसित करना है। इंटेलेक्ट इसमें जो बालक है उसे नॉलेज प्रदान करना is the aim of idealists. Now, what is the curriculum according to idealists? According to idealists, the curriculum should be based on the ideas and ideals and experience of human beings. जो curriculum है वो based होना चाहिए विचार पर, उनके ideas पर और उनके experience पर. The curriculum should embody the accumulated experience of mankind. जो कैरिकुलम है वो बेस्ड होना चाहिए व्हाट आर द एक्सपीरियंस, मैन के क्या एक्सपीरियंस है इसमें बेस्ड होना चाहिए। फॉर दिस बोथ सोशल एंड फिजिकल environment are useful. Here the idealist said that the curriculum should be based on social and physical world, मतलब कि उसका पूर्ण विकास होना चाहिए मानसिक रूप से भी और उसके सोशल वैल्यूज भी डेवलप होना चाहिए और उसका जो फिजिकल उसकी जो बॉडी है उसको भी डेवलप होना चाहिए। द पर्सन एक्वायर्स द नॉलेज ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट फ्रॉम द फिजिकल साइंसेस एंड द नॉलेज ऑफ सोशल इन्वायरमेंट फ्रॉम द सोशल साइंस।
science. According to idealists, all three aspects should be included in curriculum to develop the cognitive, functional, and emotional aspects of child personality. Here, the curriculum, there are many idealists that divide the curriculum ऑफ मैन. फर्स्ट जो हमारे प्लेटो ने थे, उन्होंने जो एक्टिविटीज, मनुष्य की जो क्रियाएं थी, उनको तीन भागों में डिवाइड किया था. पहला था इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, दूसरा था एस्थेटिक कलात्मक, और तीसरा था मॉरल मतलब नैतिक. उन्होंने इंटेलेक्चुअल में बताया कि भाषा, उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान. उन्होंने बोला कि कैरिकुलम में इंटेलेक्चुअल रूप में भाषा होनी चाहिए, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान. और कलात्मक में उन्होंने बोला कि कला और काव्य संकलित होना चाहिए. और मॉरल में उन्होंने बोला कि धर्म, आचार शास्त्र और आध्यात्मिकवाद, इन सबको इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि मानव मनुष्य का पूर्ण विकास होगा, जिसमें कि मनुष्य का पूर्ण विकास होगा. नाउ वी लर्न अबाउट द व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग. अब मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या थे अकॉर्डिंग आइडियलिज्म के. नाउ अकॉर्डिंग टू बाटलर, बाटलर ने बोला कि आदर्शवादी अपने को किसी एक विधि का भक्त ना मानकर विधियों का निर्माण तथा निश्चय करने वाला मानते हैं. उन्होंने बोला कि जो आदर्शवाद है वो किसी एक मेथड पर डिपेंड नहीं है. उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स तैयार किए अकॉर्डिंग टू देयर थॉट्स. नाउ डिफरेंट आइडियलिस्ट हैव अडॉप्टेड डिफरेंट आइडियलिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दिए. पहला था डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड मतलब आगमन एवं निगमन विधि, जो कि अरिस्टो ने दी थी, मतलब एरिस्टोटल ने दी थी. अकॉर्डिंग टू डिडक्टिव मेथड, इसमें हम लोग को समान से विशिष्ट रूप की ओर जाना चाहिए और निगमन में विशिष्ट से समान की ओर आना चाहिए. और सेकंड था क्वेश्चन आंसर मेथड, जो कि दिया था सोक्रेट्स ने, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर पूछकर क्वेश्चन आंसर मेथड से हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं. तीसरा था कंजर्वेशन मेथड, जो कि प्लेटो ने दिया था. उन्होंने बोला इसमें हम लोग बच्चों से बात करके उनको नॉलेज दे सकते हैं. तीसरा था लॉजिक मेथड, जो कि चौथा था लॉजिक मेथड, जो कि हीगल ने दिया था. जो कि हीगल ने, उन्होंने बोला इसमें हम लोग तर्क करके बच्चों को सिखा सकते हैं. चौथा था इंस्ट्रक्शन मेथड, जो कि हार्वर्ड ने दिया था. अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड, जो इंस्ट्रक्शन मेथड है उसमें हम लोग बच्चों को कुछ भी काम देकर कुछ भी समझा कर उन्हें हम लोग पढ़ा सकते हैं. और लास्ट जो दिया था वो पेस्टोलॉजी ने दिया था, प्रैक्टिस एंड रिपीटेटिव मेथड, रिपीटिशन मेथड, जिसमें हम लोग बार बार प्रैक्टिस करा के रिपीट कराकर बच्चों को सिखा सकते हैं. नाउ अब अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म टीचर कैसा होना चाहिए. आइडियलिस्ट के अनुसार टीचर्स होना चाहिए, टीचर इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर ऑफ फॉर द चाइल्ड. टीचर को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना है एट आइडियलिज्म में. उन्होंने बोला कि टीचर जो है वो बच्चों को सत्ता का साकार रूप दिखा सकता है. द टीचर शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. जो टीचर है उसे उस जो वो पढ़ा रहा है उसका उसे कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए. तीसरा, द टीचर शुड बी प्रोफिशिएंट इन हिज प्रोफेशनल आर्ट. टीचर को अपने अपने व्यावसायिक क्षेत्र में उसे एक्सपर्ट होना चाहिए. द टीचर शुड बी अ फ्रेंड, वेल विशर एंड फिलोसफर ऑफ हिज स्टूडेंट. टीचर को अपने स्टूडेंट का फ्रेंड बनकर उसका वेल विशर बनकर रहना चाहिए. आर टीचर शुड बी प्रोफिशिएंट इन आर्ट ऑफ लाइफ. उसे शिक्षक को जीवन की कला में निपुण होना चाहिए. और शिक्षक द टीचर शुड बी ऑफ करेक्टर. उसे चरित्रवान होना चाहिए. द टीचर शुड हैव द एबिलिटी टू डेवलप इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट. अब टीचर को ऐसा भी होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के अंदर पढ़ने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न कर सके. और लास्ट, द टीचर शुड कीप स्टडिंग कॉन्टिन्यू. और टीचर को, जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाता है लेकिन टीचर को भी साथ साथ पढ़ना चाहिए ताकि वो और अपना ज्ञान बढ़ा सके. नाउ आइडियलिज्म एंड चाइल्ड. अब बच्चा कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चाइल्ड आइडियलिज्म does not consider the child to be a mere part of the body, senses and mind. आइडियलिज्म आदर्शवाद में
आदर्शवाद ने बोला कि जो बच्चा है वो सिर्फ केवल शरीर, इंद्रियों और मस्तिष्क का बना हुआ नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट, चाइल्ड इज मानस और स्पिरिट। अकॉर्डिंग टू देम, जो चाइल्ड है वो वो मानस अथवा आत्मा का रूप होना, आत्मा, उसके अंदर आत्मा का डेवलप होना चाहिए। ही इज बॉडीड पर्सन बट हिज ट्रू फॉर्म ट्रांसलेट द लिमिट्स ऑफ बॉडी। वो शरीरधारी तो होना चाहिए लेकिन वास्तविक स्वरूप में शरीर की सीमाओं को लांघ जानता है। ही इज इम्परफेक्ट बट इज ऑन हिज वे टू परफेक्शन। जो बच्चा है वो किसी चीज में पूर्ण नहीं होता है, लेकिन वो उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा अग्रसर होना चाहिए, उससे हमेशा मोटिवेट, उससे हमेशा अ, उस चीज के लिए कोशिश करनी चाहिए जो उसे पाना है। एक और, अब हॉर्न ने बोला द चाइल्ड इज अ फाइनाइट इंडिविजुअल who when educated develops into an infinite being. His true origin is divinity, his nature is free, and his destiny is immortality. Idealists like naturalists view education not consider child centered. Idealists give central place to ideals or ideas in education. According to him, the main duty of the teacher is to develop the intelligence in the child to achieve high ideals. They also build the curriculum based on ideals. The child has to achieve these ideals. अब अब हॉर्न ने बोला कि जो बालक है उस एक परिमति व्यक्ति है जो शिक्षित होने पर अनंत पुरुष के रूप में विकसित होता है। उसका वास्तविक उद्भव देवत्व है, उसकी प्रकृति स्वतंत्र है तथा उसकी नियति अमरत्व है। और इसमें हमारे जो नेचुरलिस्ट थे उन्होंने भी अपना विचार दिया कि जो आइडियलिज्म के अनुसार जो एजुकेशन थी वो सिर्फ चाइल्ड सेंटर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उन्होंने सेंट्रल प्लेस में, मतलब बीच में इन्होंने आइडियल्स और आइडियाज को रखा। और उन्होंने बोला कि द जो ड्यूटी टीचर का जो मेन ड्यूटी होना चाहिए वो इंटेलिजेंट डेवलप करना चाहिए चाइल्ड में। और उनको कैरिकुलम भी इसी तरीके का बनाना चाहिए जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट विचार को देना चाहिए। और उन विचारों को अचीव करने के लिए बालक को प्रेरित करना चाहिए। Thus, now the फिर idealistic education is based on ideals or ideas which are given a predominant place and the child secondary place. इन्होंने चाइल्ड बालक को सेकेंडरी प्लेस दिया लेकिन फर्स्ट प्लेस इन्होंने दिया विचार को, मतलब आइडियल्स को। नाउ discipline, idealism and discipline. Idealists believe that the full development of child can happen only when he remains in discipline. उन्होंने बोला चाइल्ड का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा, जब बच्चा अनुशासन में रहेगा। ओनली बाय बीइंग इन डिसिप्लिन ही कैन अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। और जब बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा तभी वो सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव कर सकेगा। बट आइडियलिज्म आर नॉट फेवर ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। लेकिन आइडियलिस्ट जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पे उस पर बिलीव नहीं करते थे। दे डू नॉट बिलीव इन, मारने में बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने बोला कि बच्चे को आप उन सेल्फ रियलाइजेशन की अनुभूति कराइए लेकिन मार के नहीं। On the one hand, they want sympathetic control over child action. On the other, they want internal control and the absence of corporal punishment. According, वो बच्चों को कंट्रोल करना चाहते थे बट सिंपैथिक रूप में, ना कि उन्हें पनिशमेंट देकर। इन शॉर्ट, दे आर इन फेवर ऑफ इफेक्टिव डिसिप्लिन। जो वो आइडियलिस्ट थे वो इफेक्टिव डिसिप्लिन में बिलीव करते थे। दे वांट डिसिप्लिन बेस्ड ऑन रेगुलर फ्रीडम। बच्चों को फ्रीडम भी देना अनु फ्रीडम देना भी जरूरी है। अकॉर्डिंग टू हिम, डिसिप्लिन मीन्स इन कैलकुलेटिंग द मोरल वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, politeness, submission, and obedience. Now, school. According to idealism, school is a place where the capacities of logical thinking, reasoning, and evaluating of the child are progressively stimulated and developed by teacher and the school environment into desirable channels so that high spiritual ideas and values are gained. स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग बच्चों का लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड एवेल्युएशन डेवलप कर सकते हैं।
एक प्रोग्रेसिव रूप में। सो स्कूल इज नेसेसरी। सच नोबल मिशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म मे बी अचीव थ्रू प्रॉपर गाइडेंस ऑफ टीचर। इसको हम लोग तभी अचीव कर सकते हैं जब टीचर प्रॉपर गाइडेंस देगा बच्चों को, जो कि हम लोग स्कूल में एक प्रॉपर रूप में कर सकते हैं। हेंस आइडियलिस्ट कंसीडर स्कूल एंड इस इम्प्रेशनेटिक इन्वायरमेंट एज ग्रेटली एज। इसलिए आइडियलिस्ट ने स्कूल को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी है। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ आइडियलिस्ट फिलोसफी, और आइडियलिज्म के व्हाट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू idealist. Idealistic education emphasizes the inculcation of the highest values, namely truth, beauty, and goodness. This will lead to the development of moral character of child. Merit इसमें ये है कि moral नैतिक विकास करने के लिए चाइल्ड का उन्होंने एजुकेशन पे इम्पोर्टेंस दिया, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गॉडनेस, सत्यम, शिवम एंड सुंदरम पर। आइडियलिस्ट एजुकेशन एम एट द सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल बाय वंस ओन एफर्ट। आइडियलिस्ट एजुकेशन जो एम था वो सेल्फ रियलाइजेशन था, जो कि इंडिविजुअल अपने ही एफर्ट से ज्ञान कर सकता है, और उन्होंने प्रमोट किया यूनिवर्सल एजुकेशन को। और इन द प्रोसेस ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन द टीचर इज असाइन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आइडियलिस्ट ने टीचर्स को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया। द टीचर influences the child by his high ideals of life. This achieve the fullest development of child personality. Idealism emphasis on the principle of self discipline. उन्होंने self discipline को भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। और now because idealist philosophy and education, the school has grown into an important social organization. इन्होंने schools को भी बहुत ही इम्पोर्टेंस दी। नाउ व्हाट आर द वीकनेस, अब वीकनेस क्या है इस आइडियलिस्टिक फिलोसफी का। आइडियलिस्टिक स्कीम ऑफ एजुकेशन पे लेस अटेंशन टू द हाईली टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट। आइडियलिस्ट जो आइडियलिस्टिक एजुकेशन थी, उन्होंने जो अभी इस टाइम का जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। आइडियलिज्म इज कंसर्न विद द अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ। आइडियलिज्म ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ, मतलब आत्मा परमात्मा से मिलना, उन्होंने इन सब पे ही ध्यान दिया। इट अवॉइड द रियल प्रॉब्लम ऑफ डे टू डे लिव। उन्होंने जो रियल प्रॉब्लम डे टू लिव में एक्शन उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एजुकेशन शुड बी सच एज टू मेक इंडिविजुअल कैपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट कन्फ्रंट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड आर एबल टू लीड अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ। अब उन्होंने ऐसा ज्ञान नहीं दिया कि वो जो इंसान है वो जो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसे कैसे वो ओवरलैप कर, उसको कैसे वो दूर कर सके, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आइडियलिस्टिक एजुकेशन गिव मोर इम्पोर्टेंस टू टीचर इन रिलेशन टू द चाइल्ड। अब इसका एक लिमिटेशन ये भी थी कि उन्होंने टीचर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी एज कंसिडर टू चाइल्ड। लेकिन जो मॉडर्न फिलोसफी उन्होंने सेंट्रल और प्राइम इम्पोर्टेंस चाइल्ड को ही दिया है। आइडियलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग इन्फेसिस क्रैम्पिंग ऑफ रोट मेमोरी इन मॉडर्न एजुकेशन। दिस मेथड हैज़ लिटिल इम्पोर्टेंस। जो रोट मेमोरी है उस पर आइडियलिज्म जो फिलोसफर थे उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन आज के टाइम पे इसे कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। नाउ these are my references from where I write this PowerPoint presentation, and there are many more websites from where I search. Now, thank you, sir. एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन सौम्या, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, Thank you, sir. बहुत अच्छी कोशिश की आपने, बिना तैयारी के जो है प्रेजेंटेशन कर दिया है ना, मानसिक रूप से तैयार नहीं थी, सूचना नहीं थी आपके पास। नहीं, चलिए, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। थैंक यू सर। और फीडबैक देना चाहेगा कोई? सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था सर, स्लाइड्स भी बहुत अच्छी बनी थी। हाँ, स्लाइड भी बहुत अच्छा, वैसे भी बहुत क्रिएटिव काम करती है सौम्या। यस सर। सौम्या है, श्रेया है ना, और भी बच्चे हैं। चलिए फिर अगली क्लास के लिए जाइए आप लोग। सर मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, मुझे लेट हो गया था। हाँ दीपिका, लगा देंगे। जी सर। लगा